Good morning, class. Uh, from today, we will start the next chapter, that is 18th, that is body fluid and circulation. What are the body fluid? That is blood, and circulation is transportation of that blood from one part to another. So you can say circulation is the transportation of blood from one part, that is heart, to the different part of bodies, that is circulation. Now in this slide, what is given? Blood is the most commonly used body fluid by the most of the higher organisms, including human, for this purpose. And other than this, most common is blood. Other than this, in our body also lymph is also present, that help in transportation of certain substances. Means we have two components, mainly two components which circulate within our body. One is blood and second is lymph. Now next is the human blood. As I told you, we have fluid, that is blood. So first component means fluid of our body is मेन is blood. तो ब्लड का अगर कंपोजिशन की बात करें तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. एंड व्हाई वी कॉल्ड इट टिश्यू? व्हाई ब्लड इज कॉल्ड टिश्यू? बिकॉज टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, and it is the group of cells, just like it has RBC, WBC and platelets, plasma. That's why it is considered as tissue. Now next is component of blood. There are main two component of blood. One is plasma and second is formed element. Formed element means ki type of cells which are present in this. तो प्लाज्मा क्या होता है? डेट इज़ लिक्विड लाइक सब्सटेंस और जेली लाइक सब्सटेंस जिसके अंदर ये फॉर्म्ड एलिमेंट एम्बेडेड है. ऐसी पॉइंट, ऐसा पार्ट जिसके अंदर ये पॉइंट सेल्स एम्बेडेड है, डेट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा. प्लाज्मा जेली लाइक सब्सटेंस है, तो इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substances, or you can say transportation of these cells, these formed elements. और formed element कौन कौन से हैं? One is red blood cell, that is also called the erythrocytes. Second is thrombocytes, that is also called the platelets. And white blood cells are called the leukocytes. There are main three components. One is red blood cell, means erythrocyte. Second is white blood cell, that is leukocyte. And third is platelets, that is called the thrombocytes. White blood cells को हम फर्दर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है. जस्ट लाइक कि अगर सेल है, उसके पास ईच सेल हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास चारों तरफ बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं. अगर वहाँ पे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डैट इज़ कॉल्ड द ग्रेन्युलोसाइट. और अगर नहीं है तो डैट इज़ अ ग्रेनुलोसाइट. ग्रेनुलोसाइट को भी फर्दर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस और अकॉर्डिंग टू द शेप. I will tell you later. And same, granulocyte is also divided as lymphocytes and monocytes. Now first we will discuss the first component of blood, that is plasma. Now we will study the detail of all these components, means what is red blood cell, what is plasma, what is WBC, what is platelets.
नाउ फर्स्ट इज प्लाज्मा. प्लाज्मा के कंपोजिशन क्या है? दैट हैज़ 90 to 90% ऑफ वाटर, 6 to 8% proteins, and other is iron. Means about 2% is the ions. These iron may be the calcium ion, sodium ion, magnesium ion, chlorine ion, carbonate ion, phosphate ion, and other organic compounds in ionic form. Any and proteins कौन से? Fibrinogen, globinogen, and albinogen. Mainly 3 type of proteins are present in this, and other part is water. That's why water is important, because it also help in formation of plasma. Now come to this. Plasma is a straw colored viscous fluid constituting nearly 55% of blood. Means जो total amount blood का है 55% about, that is only plasma. And other than this, approximate 45% is RBCs, platelets, and WBCs. So 90 to 92% of plasma is water, and protein are about 6 to 8%. Proteins में mainly कौन से हुए? Fibrinogen, globinogens, and albumin. Now what are the function of all these 3 proteins? Why they are present in plasma? Now come to first, fibrinogen. Fibrinogen blood clotting में हेल्प करती है. मीन्स जब आपको कहीं कट लग जाए या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने में मेन कौन हेल्प करेगा? इट ऑल्सो हेल्प इन fibrinogen. Means other than platelets, it also require. Globulin mainly ये defense mechanism. Means when WBCs work, they start working. or you can say कि along with globulin and WBCs can work. Means both can work in the fighting against the disease. दूसरी लास्ट हो गया albumin, third one. It help in maintaining the osmotic balance. Osmotic balance means कि it help in maintaining the water amount in the body. And plasma में जो मिनरल्स हैं, इनका मेन क्या फंक्शन है? ये मिनरल्स जो भी हमारे आयनिक फॉर्म में होते हैं, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. क्योंकि जहाँ एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो जब ये देखो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट टाइम दे रिक्वायर glucose, amino acids, lipids are also present in plasma as they are always in transit in the body. ये हमेशा प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि बॉडी में जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दे ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा. कहते हैं ना कि ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी ने ब्लड ने एब्जॉर्ब किया. तो जब ग्लूकोज या हमारे बॉडी से डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स ब्लड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑल दीज डाइजेस्टेड कंपोनेंट रिमेन इन प्लाज्मा. तो दे प्रेजेंट इन. अब जो फैक्टर्स होते हैं कोगुलेशन एंड क्लोटिंग के लिए, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस एंड अदर फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर जब हमारे इसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट टाइम दे बिकम एक्टिव. प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड द सीरम. प्लाज्मा जिसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है, बिकॉज सीरम क्लोट नहीं बना सकता है. ब्लड को हम अगर एज इट इज़ रखते तो इट कैन स्टार्ट कोगुलेटिंग, मीन्स वो जमना शुरू हो जाता है, लेकिन सीरम नहीं जमता है. तो जहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं है, कोगुलेशन फैक्टर्स नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, डेट प्लाज्मा इज़ कॉल्ड द सीरम. और आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे कि प्लाज्मा डोनेशन, जैसे वायरल फीवर कोरोना में, तो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, अदर देन दीज
प्लाज्मा के अंदर हमारी बॉडी में एंटीजर्म्स और एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होते हैं. वी विल डिस्कस लेटर. They also used for this. Sorry, they also transport along with the plasma. Now, second is erythrocyte. That is the first component of, other than plasma, you can say that is the element, basic element. So red blood cells are also considered as erythrocytes. RBCs, erythrocytes and red blood cells all are same. हमारे ब्लड का रेड कलर भी इनकी वजह से ही होता है. एंड एवरेज एक ह्यूमन बॉडी में, एवरेज अडल्ट मैन में दे आर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ RBCs इन मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. मीन्स की पर्टिकुलर अगर वॉल्यूम हम लेते हैं, that is the 1 मिलीमीटर क्यूब, तो उसके अंदर इतने RBCs अप्रॉक्सीमेट प्रेजेंट होते हैं. That's why RBCs cannot be seen by the naked eye. They have red colored iron containing complex called the hemoglobin. मीन्स की जो हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन होती है, हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन के चारों तरफ 4 कंपोनेंट्स लगे होते हैं. एंड इट फॉर्म लाइक द चेन, कि ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. तो ये क्या करता है कि जो कंपोनेंट्स इसके साथ बाइंड होने हैं, दे अटैच विद इट. और एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 to 16 ग्राम, वो क्या था, नंबर, डैट इज़ नंबर. बट अगर हम उनके वेट करें, डैट इज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड. और जो जनरली हम कंसिडर करते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन 13 है, 14 है, 15 है, डैट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस इट मे बी 12 to 16. Now these molecules play the significant role in transport of respiratory gases. Means along with hemoglobin, oxygen can bind, carbon dioxide can bind, so they can easily transport within the body. RBCs की जो लाइफ होती है, they destroy, या लाइफ स्पैन ऑफ RBC, that is from formation to the death of RBCs, that is about 120 days. After that, after 120 days, they can destroy, and they destroy in the spleen. Hence, spleen is also known as graveyard of RBCs, and these RBCs are formed in bone marrow. तो बोन मैरो तो आप कह सकते हो कि उसमें बर्थ हुआ उनका, एंड दे फॉर्म. एंड ग्रेव यार्ड इज, स्प्लीन इज़ कंसिडर्ड एज ग्रेव यार्ड. आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में नीचे देखा होगा, एक पैनक्रियास के पास एक स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन प्रेजेंट है, डैट हेल्प इन डिस्ट्रॉय. मीन्स कि जब स्प्लीन में RBC जाते हैं, आफ्टर 120 days दे कैन डिस्ट्रॉय इन दैट, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ RBC. नाउ नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट. ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? दे आर WBCs. दे आर कलरलेस, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है. And they are nucleated and relatively lesser in number. Means comparatively hemoglobin के कम होता है नंबर, and that is approximate 6,000 to 8,000 millimeter cube of blood. ल्यूकोसाइट्स की लाइफ बहुत कम होती है. एंड आप अगर हम कहें कि ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, RBCs, WBCs, platelet, all these are made up of proteins.
तो बेसिकली दीज आर ऑल्सो द प्रोटीन्स. अब इनके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ही या उनकी कैटेगरी जो किया हुआ है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द ग्रेन्यूल्स. One is called the granulocyte and second is called the agranulocyte. Granulocyte are further divided: neutrophils, eosinophil or basophils, lymphocytes, and monocytes. अब बेटा जो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है उनकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग और उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग. नाउ कम टू द ग्रेनुलोसाइट. ग्रेनुलोसाइट क्या होता है? फर्दर डिवाइड हुए 3 पार्ट्स में. न्यूट्रोफिल्स एंड उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग बेटा. न्यूट्रोफिल्स आर अबाउट 60-65% ऑफ टोटल आरबीसीज. मतलब आरबीसीज को भी अगर हम डिवाइड करें तो जो टोटल आरबीसीज हैं उनका 60-65% न्यूट्रोफिल है. एंड बेसोफिल जो होते हैं दे आर लीस्ट. बेसोफिल का अमाउंट है 0.5 to 1%. एंड न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का जो नेचर होता है दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर. फैगोसाइटिक मीन्स कि दे कैन एनगल्फ द foreign particles, they can engulf the foreign particles or they can engulf the destroy particles. So जब ये क्या करते हैं कि जो भी कोई foreign particle, कोई भी that may be germ, that may be another thing, they start engulfing them और उन्हें destroy कर देते हैं. बेसोफिल का काम क्या होता है? बेसोफिल करता है कि एक अमाइनो एसिड, यू कैन से प्रोटीन, नॉट अमाइनो एसिड, प्रोटीन रिलीज करता है, डैट इज हिस्टामिन एंड स्टेरोनिन, हेपरिन. ये क्या करते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस शो करते हैं. मीन्स कि जब ये रिलीज़ हो रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो ये इन स्वेलिंग, जस्ट लाइक स्वेलिंग टाइप से फॉर्म कर जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि देयर इज़ सम इन्फेक्शन, देयर इज़ सम फॉरेन पार्टिकल्स. अदरवाइज़ हमारी बॉडी कैसे शो करेगी कि देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन ब्लड, समथिंग गेट एंटर्ड इन ब्लड. तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करते हैं. और जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है दे कैन क्रिएट सम टाइम ईचिंग, सम टाइम रैशेज ऑन द बॉडी. तो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आर shown by the basophils. अब थर्ड आता है, सॉरी, इसमें eosinophils, a type of granulocyte that is approximate 2 to 3% of total WBCs, and they register infection and also associated with the allergic reactions. मीन्स कि जो हमारी बॉडी में कई बार जैसे हम बोलते हैं कि एलर्जिक कंडीशंस है, हमें उस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, तो ये इज़िनोफिल्स जो रिएक्शन, ये उन चीज़ों से एसोशिएट है. और जब भी वो एलर्जिक चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर आती हैं दे स्टार्ट रिएक्टिंग. तो ये एक तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी में, और जिनके अगेंस्ट, जिनसे हमारी बॉडी को एलर्जी है, वी इट मेक अस अलर्ट और इट शोज़ कि हमारी बॉडी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती है. तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे आर नेम्ड एज. नाउ नेक्स्ट इज agranulocyte. They are further divided into lymphocytes and monocytes. Sorry, wait. Lymphocytes are 20 to 25% of total WBCs and they are of two type. Lymphocytes को हम बोलते हैं B cells और T cells. Means they are B lymphocytes and T lymphocyte, and they are helpful for the immune system of our body. Means they develop our immunity. Now next is platelets. Platelets को हम thrombocytes बोलते हैं because they help in
thrombing means they help in clotting of blood, and normally they are 1,50,000 to 3,50,000 platelets मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं विच हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अगर इनका नंबर कम हो जाए तो ये क्लोटिंग को रिड्यूस कर देते हैं एंड विच कैन कॉज द हेमरेज ऑल्सो, कि बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लूज़, कि अगर छोटा सा भी कट लगा तो बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा। और ये इतना थिन हो सकता है कि जब क्लोटिंग प्लेटलेट्स होंगे ही नहीं तो इट मेक द ब्लड वेरी थिन। अब उस थिनिंग की वजह से कहीं भी क्लोटिंग जो होना है कि वो कहीं भी फ्लो कर सकता है, वो क्लोट नहीं कराएगा उसे। अगर इंटरनली कहीं भी थोड़ी सी इंजरी हुई है तो वहाँ भी वो कंटिन्यूटी में फ्लो करता जाएगा। तो दैट्स व्हाई प्लेटलेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।